us our guest here for the day. Suresh Jain, ophthalmologist, MBBS, DOMS. She has been visiting us every year, except for the last 2 years when the students were not there in the school. Awareness program regarding the eye donation and the organ donation. She is the Rashtriya Deshdan Sakhi and Prantiya Netradan Pramukh. She has attended, she has done more than 150 programs till now, and 30 times she is national and state awardee. She has received the award 30 times at the national level and at the state level. She has also been awarded Samaj Ratna and Samajyati Soneri Mansa award by the state government of Maharashtra. Along with her, today we have Dr. Suresh Jain here. He is also a participant every time in the program being conducted by Dr. Rajkumari Jain for the eye donation as well as the organ donation. So, I would like to request our principal ma'am to please welcome her with a bouquet of flowers. And a shawl. Everybody please put your hands together. We have to also welcome Dr. Suresh Jain. So I'll just welcome him also. So Dr. Rajkumari Jain would be explaining about what do we understand by organ donation, what do we understand by the living conditions, and things she will be explaining us when can we donate our organs. So before that, I would like to request our respected principal ma'am to please come on the stage and speak a few words. Thank you. Good morning, dear students. Today we are very happy to see here our special guest, Dr. Rajkumari Jain ma'am, who has been taking the program for awareness for this donation, eyes as well as body parts. Dear children, this is really very fruitful program. Last 2 years we missed as due to Corona. We didn't have this kind of program. But before that, really it was very effective, and the parents, they were given me the feedback. It's good for Parola Tahsil that ma'am, Rajkumari Jain ma'am is here, and she is taking always different kind of programs for this awareness. You, the future citizen of this India, know about the different kinds of donation. You know only the blood donation, but you don't know about eye donation and this different kinds, different parts of our body we can donate, how and when. So I welcome Dr. Rajkumari Jain ma'am, and whatever she will tell you, you have to give the same message to your parents and grandparents
carefully. Dear children, really it's very, very important. Because now we are live, so we can very happy, we can see so many things, the beautiness of this nature. But just imagine a person without the things which God has given to us. But if a blind person is there, how he or she imagine this world? For a single minute, if we switch off the fan and light, how you feel? Now you are sitting here, continuously 2 minutes, if I will say to sit, how you will feel? So we are very lucky that we have all the body parts and especially these eyes by which we can see this beautiful world. So dear children, listen carefully and same message you have to give to your parents, whatever you will listen. So I will welcome Dr. Rajkumari ma'am here. She will give the awareness program. Listen and respond carefully. Okay? No? So after ma'am also I will ask 2 questions to you. Be ready for that. Thank you. Respected Principal Madam and all the teachers और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आप सभी के सामने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आए हैं और हमारा यह इंटरनेशनल सम्मेलन है। कुछ विदेशों में और भारत के सभी प्रांतों में 19 प्रांतों में हमारी शाखाएं हैं। करीब 30,000 के करीब हमारे सदस्य हैं। हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव अभी देश के सभी सैनिकों को बॉर्डर में 2 से 2.5 लाख के करीब राखियां भिजवाकर सफलतापूर्वक मनाई है और 1 से अवयव दान का अवेयरनेस कर रहे हैं। 75 ईयर हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के, तो हम 75,000 पब्लिक को अवयव दान कर अवेयर करना चाहते हैं। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, अवयव दान क्या होता है? अवयव मतलब हमारे शरीर में जो अंग होते हैं, जैसे कि हृदय है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग, पैनक्रियास, ये सभी अवयव है। और टिश्यू होते हैं जैसे कि कॉर्निया, जिसको कि नेत्रदान कहते हैं अपन, अपने लिगामेंट्स होते हैं, वाल्स होते हैं हार्ट में, ये सब टिश्यूज होते हैं। इन सभी का हम दान कर सकते हैं। अब हमें आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि दान की क्यों आवश्यकता है? हो सकता है यहाँ उपस्थित कुछ बच्चों के घर में ऐसे मरीज हो या भगवान की कृपा हो किसी के घर ऐसे कोई मरीज ना हो, लेकिन यदि किसी का लीवर खराब है, किडनी खराब है, किसी का लंग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल निकामी हो गया है, आंखें खराब है, उसको दिखाई नहीं देता है और वह व्यक्ति घर का अर्निंग मेंबर हो, तो उस परिवार की क्या हालत होंगी आप सोच सकते हैं, है ना? और भारत सरकार का 94 से रूल निकल गया है। ऐसा नहीं कि हमने ले लिया किसी का और किसी की किडनी किसी को लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यदि जीवित अवस्था में हमें दान देना है तो हमें अपने रिश्तेदार को ही एक किडनी, लंग का कुछ भाग, लीवर का कुछ भाग हम दान दे सकते हैं। वो भी कौन? अगर हमारे परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार है तो परिवार का ही दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसे दान देगा। यदि किसी और से लेना है तो उसके लिए बहुत सारी कानूनी प्रोसेस होती है, तो यह थोड़ा सा मुश्किल काम है, हालांकि परिवार के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। देखिए, कोई भी काम
स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है। यदि अपने को रास्ता नहीं मालूम है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रास्ता मालूम होता है कि वहाँ कैसे जाना है तो स्मार्टली अपन पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं स्मार्ट वर्क का एक आइडिया देती हूँ कि देखिए, जब अपनी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस स्वर्गवासी जीव के शरीर को हम जला देते हैं। सही है ना? हाँ, जला देते हैं, वो सब राख हो जाता है। किसी को कुछ काम आता है क्या? कोई काम नहीं आता। तो यदि हमने किसी को अपनी आंखें, जिसको कि कार्निया डोनेट करते हैं, आंखों में दे दी तो हमारा कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा ना? तो नॉर्मल जो मृत्यु होती है उसमें हम अपनी कार्निया डोनेट कर सकते हैं। ये स्किन, कातड़ी, मराठी में कातड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं हम, और बहुत सारे टिश्यू भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, सभी जगह आई डोनेशन की तो आज फैसिलिटी है। आई डोनेशन के लिए कुछ नहीं करना, या तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ये पैम्पलेट मैंने आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें सारी जानकारी है, इसमें मेरा फोन नंबर भी है। या फिर आई डोनेशन के लिए तो 1919, ये प्रत्येक जिले के लिए कॉमन नंबर है, 1919। आप फोन करेंगे, आई जाएंगे, टीम को फोन लग जाएगा और वो आकर के आप कार्निया ले लीजिए। आपके परिजनों को कार्निया डोनेट करना हो या ना करना हो, लेकिन आप आदत बना लीजिए कि आँख के नीचे आंखों को बंद रखना है और गीला कपड़ा रखना है। लेकिन मेरा आज का विषय विशेष रूप से अवयवदान है, इसलिए अभी मैं नेत्रदान पर बाद में बात करूंगी, अवयवदान पर बात करती हूँ। तो यदि अपनी मृत्यु हो जाती है किसी की भी अपने परिवार में, तो अपन आंखों को दान कर सकते हैं, सारे प्रकार के टिश्यूज का दान कर सकते हैं। ये नॉर्मल डेथ पे, घर पर डेथ हुई तो केवल कार्निया और स्किन दी जा सकती है, और यदि हॉस्पिटल में डेथ हुई तो सारे प्रकार के टिश्यू अपन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन डेड, अब ब्रेन डेड क्या होता है? देखो, पेशेंट बेहोशी की हालत में है, बेहोश है वो, तो बेहोशी की हालत में पेशेंट दो प्रकार का होता है। एक तो बिना किसी मेडिकल एड के वह जीवित है, उसको किसी भी प्रकार का वेंटिलेटर या कोई भी प्रकार का मतलब मशीनरी एड नहीं लग रहा है, तो वो पेशेंट जो कि बेहोश है और कोई भी प्रकार की मशीनरी से जीवित है, बिना किसी मशीनरी के जीवित है, वो उसके वापस जीवित होने की संभावना है। तो उसके लिए अपन कुछ नहीं करना है, उसका अपन कोशिश करते हैं कि वो जीवित हो जाए। लेकिन यदि ब्रेन डेथ हो गया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ब्रेन की मृत्यु हो गई है ना, ब्रेन छत विक्षत हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा पेशेंट वेंटिलेटर की सहायता से, कृत्रिम सहायता से उसके सारे शरीर के अवयव जीवित रहते हैं, लेकिन उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है और यह पेशेंट जीवित नहीं रहेगा। ऐसे पेशेंट को यदि आप, सरकार पहले ब्रेन डेथ घोषित करने के पहले 3 बार टीम, डॉक्टर्स की टीम, कलेक्टर की टीम, PSI वगैरह सारे लोग मिलकर के डिक्लेयर करते हैं कि यह पेशेंट ब्रेन डेड है। एक बार भी डिक्लेयर करने से नहीं होगा, उसके पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट के हिसाब से 3 बार डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, मतलब 3 बार एग्जामिन करते हैं उस पेशेंट को, नहीं इस पेशेंट को बचने की कोई संभावना नहीं है, तब जाकर के वो ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। ब्रेन डेड मतलब उसका मस्तिष्क छत-बिछत हो चुका है, उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उसके अवयव वेंटिलेटर की सहायता से कार्य कर रहे हैं। ऐसा पेशेंट, चूंकि अब अपन तो उसको जला देने वाले हैं, राख होने वाला है, लेकिन इस पेशेंट का यदि हमने किडनी, लीवर, हार्ट, लंग किसी को डोनेट कर दिया, तो देखिए अपने परिवार वाले किसी के हृदय वगैरह, किडनी वगैरह दान, हृदय तो नहीं दान कर सकते, किडनी और लीवर का एक भाग दान करने से अच्छा है, या फिर जो ब्रेन डेथ हो गया जिसको हम जला के राख कर देंगे, वह डोनेट करना अच्छा है? आप ही बताइए मुझे, क्या सही है? परिवार के किसी स्वस्थ व्यक्ति को, अपने परिवार में किसी बीमार व्यक्ति को अपनी किडनी या लीवर का कुछ भाग डोनेट करना आसान है, या ब्रेन डेड पेशेंट जिसको कि हम जला देंगे उसके शरीर के अवयवों को दान करना आसान है? क्या आसान है ना? आपको भी समझ गए ना? वो एकदम आसान है। अच्छा, कोई भी प्रक्रिया में कहीं कोई प्रकार का अपने को पैसे नहीं देने हैं, निःशुल्क है सब कुछ। जैसे ही गवर्नमेंट में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, उसके आगे का आपको हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं लगना है, आपको कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक
फॉर्म आता है, उसको भरना है कि हमारा ये पेशेंट ब्रेन डेड है और हमें इसके अवयव दान करना है। ऐसे भी हम जलाते हैं उन सारे अवयवों को, है ना। तो हम इस आजादी के अमृत महोत्सव में आप सभी को जागरूक करने के लिए आए हैं। आप सभी को हमने ग्रीन रिबन लगाया है। यह ग्रीन रिबन सिंबल है अवयव दान का, ऑर्गन डोनेशन का, और आपको हमने पैम्पलेट दिया है, उसमें ये सारी जानकारी है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। साथ में आपको देखिए, अभी इसके सिवाय आपको क्या करना चाहिए। आप राह में कहीं पर भी चल रहे हैं, रास्ते में किसी की एक्सीडेंट हो गया, किसी का, क्या करना चाहिए हमें, उन्हें ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए जहां आईसीयू की फैसिलिटी है। उससे क्या फायदा होगा, एक तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, जीवित रहा तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं रहा और ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया तो हमें उसके अवयव दान करते आएंगे। तो मैडम यदि टाइम हो तो मैं नेत्रदान के बारे में 5 मिनट बोले। अब मैं आप लोगों को नेत्रदान के बारे में बताती हूँ। यदि हमारे परिचित में किसी का स्वर्गवास होता है तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आंखें बंद कर देनी है, आंखों के ऊपर गीला कपड़ा रखना है, गीला कॉटन, और आई बैंक की टीम को फोन करना है। आपको कुछ ध्यान रखना है तो मुझे फोन करिए, मैडम के पास मेरा नंबर है, पैम्पलेट में मेरा नंबर है, मैं उसी समय आई बैंक की टीम से आपको संपर्क करा दूंगी। विदिन एन आवर आई बैंक की टीम आ जाएगी। आपको सर के नीचे 1 इंच 6 इंच ऊंचा तकिया रखना है, आंखें बंद करनी है, आई बैंक की टीम को फोन करना है और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बता देना है, ताकि और 2-3 मोबाइल नंबर दे देना, एक आधा मोबाइल न लगे तो दूसरे से लग जाएगा। बस आपको इतना ही कार्य करना है। कभी विस्तार में मैं आई डोनेशन और आंखों की केयर कैसे लेनी चाहिए, जब भी अभी नेक्स्ट हमारा नेत्रदान बंदर वाला आएगा तब चाहे आप अगर प्रिंसिपल मैडम परमिशन देंगी तो मैं ले लूंगी, आप लोगों को नेत्रदान के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। आज मेरा प्रोजेक्ट अवयव दान पर है। धन्यवाद, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आपको तो पूछ सकते हैं। आपको अवयव दान के बारे में या नेत्रदान के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वो जो मैंने पैम्पलेट दिया है उसमें पीछे फॉर्म भी है, आप चाहे तो फिलअप कर सकते हैं। मैडम को मैं गूगल फॉर्म भी सेंड कर दूंगी। गूगल से आप लोग सभी होशियार हैं, आप लोगों को गूगल हैंडल करना आता है, गूगल से भी फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन फॉर्म भरने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य दीजिएगा आप लोग, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में रहे कि बोरा सेंट्रल स्कूल से इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। For giving us such valuable information about the organ donation as well as for the eye donation. Most of our students and family members here would be participating for that camp you are creating an awareness about. And we hope that the students would be going at home and explaining what activity was taken today. So, as just now Madam has told us about the organ donation, and we hope that you would be participating in that, filling up the forms as required. How many of you agree that organ donation is a good thing? That instead of burning our body or instead of just putting our body into the soil after our death, if we donate the organs. Yes, many of you agree for that. Many of you agree. Yeah, that shows the success of the program conducted by Dr. Rajkumari Jain. So everybody clap for yourselves. For creating such an awareness.